Good morning, student. I have a piece of information related to your syllabus that is very important, and you have to note in your diary, somewhere in your diary, because this one is very important information related to your subject. As you know, because of COVID-19, government has reduced 30% syllabus in each subject of your class related with as in intermediate and in high school. So student, as far as English subject is concerned, you have to note down two chapters from prose have been reduced. They are The Secret of Health, Success and Power, and next one is I Am John's Hurt. Okay, and in PDF I will provide in your group. But as far as recently, I am telling you, you have to note down in your diary. And related with poetry, your last poem and last one, La Bella Damsel Mercy, that one is removed, and the last poem, The Song of the Free, that one has been removed, and the elegy written in a country chart, that has been removed from your syllabus. Means to say, 3 poems and 2 chapters have been removed. And as far as short story is concerned, you know that there are 4 stories in your syllabus, and the last story, a special experience, that one is also removed from your syllabus. So student, there is no problem if you have been provided notes and the chapter have been taught. It doesn't matter, that will be removed from your syllabus. Means to say that you are not going to study these chapters, poems and story of your syllabus. Okay, now we will consider our latest chapter. As you know, in my previous video lecture, I have given information that in next video lecture I will start short story, as only one story was going to be completed in your offline classes. This one is second story of your syllabus, and Astrologer's Day. Students, the story is very interesting, and you have I will explain the story, and you have to listen it carefully, because you have to prepare question answers based on the story. So the student, let us start our story, and with the introduction of the story writer, your story and Astrologer's Day. जो एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, ठीक, तो ज्योतिषी, एक ज्योतिषी का दिन. दिस इज द स्टोरी टाइटल. R.K. Narayan is the story writer. As far as introduction of R.K. Narayan is concerned, he was one of the 3 great novelists of 20th century. You know student, the Indian writers who have enriched English literature by his writings, they are placed under the category of Anglo-Indian writers. So this writer means R.K. Narayan also comes under the category of Anglo-Indian writer who has enriched English literature by their great novels and short stories. He was born in 1906 in Chennai, and he died in 2001. And in his during his life circle, he has gifted us very interesting stories. The special thing is related with the stories of R.K. Narayan, that is the story of R.K. Narayan and his suspense. ना, इनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो अंत है वो पूरा स्टोरी सस्पेंस में चलता है, और लास्ट में जो है वो सस्पेंस और जो सीक्रेट है वो रिवील होता है. That gives a type of different interest to the reader of his short stories. And he has written also the great novel like Swami and Friends, Mr. Sampath, The Financial Expert, The Guide, The Man-Eater of Malgudi. As Malgudi is the name of the play that I am going to give a special reference related with the place Malgudi. Malgudi was actually dreamland of R.K. Narayan. In reality, there is no no place of like Malgudi exists in the map of India, in the South Indian map. But Malgudi is the dreamland, dream village created by R.K. Narayan, and his character of Malgudi are also
imaginative, but they are characterized by the writer in this way as it gives us the feeling that they are living creature. वो इतने फेमिलियर हो जाते हैं उनकी स्टोरीज की वजह से कि ऐसा लगता है कि ये सारे कैरेक्टर्स हमारे बीच से ही निकाले गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। उनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, लवली रोड एंड मालगुडी डेज। मालगुडी डेज very very famous short story, and in TV serial has been made on the basis of Malgudi Days, and the main character of Malgudi Days was Swami, a child of near about 8 or 10 years old. Okay. So as far as this story, An Astrologer's Day, is concerned, this is also a very very interesting story. The story roundabouts a particular character who is an astrologer, and by circumstances he has been forced to adopt the profession of astrology. Actually, the story tells us the life, how the circumstances change, gives a turning point in our career, in our life. Actual motto of the story, actual theme of the story is a satire on the street astrologer. The story is a satire on the street astrologer, जो गली में, मोहल्ले में या इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का कोई भी नॉलेज नहीं होता. हाउ दे आर गोइंग ऑन रनिंग ऑन देयर बिजनेस on the basis of the psychology of the customer. They read about the psychology of their customer, and according to psychology they deal the customer, and finally they run their business. So such type of story is a story, An Astrologer's Day. And now let us start our story. In the first part of the story, student, we will read about the personality of astrologer, how an astrologer should look like an astrologer. According to profession, the personality should be created, should be maintained. Just like a doctor should look like a doctor, teacher should look like a teacher. In the same way, an astrologer should look like an astrologer. So, how he has adopted, as he had adopted the personality of an astrologer, that has been described in the beginning of the story. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. Punctually मतलब as usual routine, उसका जो daily routine था उसके according midday मतलब near about 10 or 12 o'clock, he opened his bag. वो आता था अपने business place पे बैठ जाता था. ओपन हिज बैग, अपने बैग ओपन कर, बैग जो जिसपे वो एस्ट्रोलॉजी के इक्विपमेंट्स लेकर आता था उसको ओपन करता था. स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने व्यावसायिक उपकरण मीन्स टूल्स रिलेटेड विद हिज प्रोफेशन जो है वो उनको स्प्रेड मैंने सामने डेकोरेट कर लेता था, उनके अपने अपने प्रॉपर प्लेस पे सेट कर देता था. विच कंसिस्टेड अ डजन कौरी शेल. अब व्हाट कंसिस्ट इन हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, उसके व्यावसायिक उपकरणों में क्या आता था, कंसिस्टेड इसमें शामिल था ए डजन कौरी शेल, 1 दर्जन कौरी. कौरी यू नो, जो गांव से रिलेटेड व्यक्ति वो जिसको समझ सकते हैं. कौरी वाइट पीस होता है जिसको बीच का पार्ट जो है वो डिवाइडेड होता है, और शेल माने होता है आवरण, है ना. तो कौड़ी शेल जो है वो छोटे वाइट कलर के पीसेस होते हैं जिनको हम लोग गाँव की भाषा में कौड़ी कहते हैं. ठीक है. और तो 1 दर्जन जो है कौड़ी शेल होते हैं. अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मास्टिक चार्टिंग. एक क्लॉथ का पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो स्क्वायर में होता है, चौकोर होता है, और उसमें ऑब्सक्योर मतलब क्लियर नहीं है, ऑब्सक्योर अस्पष्ट, जो मास्टिक मैंने रहस्यमय रिलेटेड विद द सस्पेंस चार्ट इस पे बना होता है, मतलब आड़ी तिरछी लाइनों का उस कपड़े पर एक चार्ट बना होता है. ए नोटबुक, एक नोटबुक होती है. एंड ए बंडल ऑफ पामेरिया राइटिंग, और पाम के पेड़ की जो टहनी है उसको छील के मतलब कलम पे पेन बनाए जाते हैं, उसका एक बंडल होता है. कलम का पामेरिया, पाम के पेड़ की जो
टहनी होती है उससे छीलकर लेखनी होती है, उस लेखनी का एक बंडल होता है। तो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट में? एक दर्जन कौड़ी शेल, एक पीस ऑफ क्लॉथ जिस स्क्वायर है और जिस पे मास्टिक चार्ट बना हुआ है, एक नोटबुक है और पाम के पेड़ की टहनियों से चिली बनाई गई लेखनी का बंडल है। ये सारी प्रोफेशनल इक्विपमेंट को वो अपने अपने प्लेस पर सजा देता है, रख देता है। नाउ व्हाट अबाउट हिज पर्सनैलिटी? हिज forehead was resplendent with sacred ash. His forehead, उसका जो मस्तक है, माथा है, resplendent माने ब्राइट, चमक रहा है, with sacred ash, पवित्र राख से, and vermilion, vermilion you know स्टूडेंट सिंदूर, और उसने अपने माथे पर राख लगा रखी है और उसके ऊपर सिंदूर का भी एक लेप लगा रखा है। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, और उसकी आंखें स्पार्कल चमकती हैं एक अनोखे तेज, ग्लीम माने चमक, चमक के साथ में उसकी आंखों में एक अजीब सी असामान्य चमक होती है। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो उसकी नजरें लगातार जो कस्टमर ढूंढ रही होती हैं, उन कस्टमर की जो खोज है, उन खोज की जो चमक है वो उसकी आंखों में दिखाई देती है। वो आउटकम उसका परिणाम होती है, वो चमक जो है उन कस्टमर की तलाश का परिणाम होती है। बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स, लेकिन ये बात उसके जो इनोसेंट कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, टू बी प्रोफेटिक लाइट, वो उसको प्रोफेटिक लाइट मीन्स नॉलेज है ना, अ लाइट ऑफ नॉलेज विद विच ही ओपन्स, ही डिक्लेयर्स द फोरकास्ट ऑफ हिज कस्टमर्स, है ना, उसकी जो फोरकास्टिंग पावर है, भविष्यवाणी करने की ताकत है, उसकी चमक समझते हैं कि बाबा की आंखों में वो चमक है जो वो सबका भविष्य बिल्कुल सही सही डिक्लेयर कर देते हैं। बट विच इज सॉरी एंड फेल्ट कंफर्टेड, और वो राहत महसूस करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास आते हैं और हमारे ये माइंड में फीड होता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर हमको सही डायग्नोज कर रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम को सही समझ रहा है, तो हमें एक बीइंग अ पेशेंट हमको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हम सही जगह पर हैं। मतलब सेम थिंग इज यार, जब लोग उस क्लाइंट जो है वो उसके एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे और उसकी आंखों में वो चमक देखते थे तो उन्हें लगता था ये उसके ज्ञान की चमक है और बाबा में इतना ज्ञान है कि वो उनके भविष्य को बिल्कुल सही उनके सामने डिस्क्लोज करेंगे। The power of his eyes was considerably enhanced by their position, और उसकी जो आंखों की चमक है वो उनकी पोजीशन माने स्थिति से इनहेंस, और ज़्यादा इनहेंस माने आकर्षित हो जाती थी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। Placed as they were between painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks, उसकी जो मूछें थी, घनी मूछें थी, वो स्ट्रीम, जैसे कोई झरना नीचे की ओर गिरता है वैसे उसकी मूछें नीचे की ओर स्ट्रीम झरने की तरह नीचे की ओर मुड़ी हुई थी। और उनकी जगह कहाँ थी, मतलब उनकी आंखों की जगह कहाँ थी? आधा तो उसका फेस, उसका फोरहेड जो पेंटेड था उससे कवर्ड था, और बाकी नीचे का फेस जो है वो लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेस जो है वो उसकी मूंछों से ढका हुआ था, बीच में केवल उसकी आंखें चमकती थी। तो इस तरह से जो आंखों की पोजीशन थी, जो आंखें प्लेस थी, स्थित थी, उनकी इस पोजीशन और ज़्यादा उसकी चमक को बढ़ा देती थी। इवन हाफ विट आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, अगर किसी के पास कम बुद्धि हो, है ना, मूर्ख व्यक्ति हो, वो भी ऐसी सेटिंग, इस तरह की पर्सनालिटी में अलग दिखाई देगा, अलग चमकेगा। टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन हियर वैसे क्राउन का मतलब ताज होता है, बट हियर क्राउन मीन्स इंक्रीज, बढ़ाना। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर पर्सनैलिटी को जो वो वियर कर रहा था, वो उसने मेंटेन की थी एस्ट्रोलॉजर वाली पर्सनैलिटी, उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए ही बाउंड अ सैफ्रॉन कलर टर्बन, वो एक सैफ्रॉन केसरिया रंग की पगड़ी, टर्बन पगड़ी को बाउंड करता था, मतलब गोल गोल उसने लपेट के बांधी हुई थी अपने हेड के चारों ओर। दिस कलर स्कीम नेवर फेड, और ये उसकी जो कलर स्कीम की रंग योजना थी अपनी पर्सनालिटी को प्लस करने के लिए, वो कभी भी असफल नहीं होती थी। मीन्स टू से हिज कस्टमर वर सेटिस्फाइड टू सी हिज पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो बिजनेस इक्विपमेंट का सेटिंग था, वो सारी चीज़ें उसके प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा सूट करती थी। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे,
And in our next video lecture, we will continue the story. In that, have a nice day. Hello student, welcome to SUI online chemistry classes for class 12. In my previous video, I was explaining you the physical and chemical properties of nitrogen family, and today I am going to start the first compound of this family, that is the nitrogen, dinitrogen. The formula of dinitrogen is N2 and the structure is N triple bond N. This is almost inactive in nature, inert in nature due to the high bond dissociation energy. This triple bond have greater bond dissociation energy, so it is nitrogen is almost inert in nature. Okay. So first of all, I am going to start method of preparation for the nitrogen gas. So first method is lab method. In lab, nitrogen is formed by the ammonium chloride, that is NH4Cl, react with sodium nitride, that is NaNO2, react with aqueous solution of sodium nitride to form nitrogen gas, that is N2, NaCl and 4H here and 2O here. So 2 molecule of water. This is the lab method for the preparation of N2. In this reaction, HNO3 and NO is also formed as impurity, which is removed by the solution of H2SO4. When this mixture passes through the solution of H2SO4, these two impurities are removed. Okay, so lab method is clear. In lab method, ammonium chloride react with aqueous solution of sodium nitride to give N2 gas. Okay, the next method is when urea means NH2CONH2. When urea react with nitrous acid, that is HNO2, and after heating N2 is formed. Here 3 and here 1, 2, 3. So take it 2 HNO2, CO2 and CO2 and H2 to 4, 5, 6. So 3 molecule of water. So this is the second method for the preparation of N2 gas. What method? Urea react with nitrous acid. When urea is heated with nitrous acid, it gives nitrogen gas. Okay. Nitrous acid is unstable acid. It is not found in lab. It is prepared by the combination of sodium nitride, that is NaNO2 and HCl. It gives NaCl plus HNO2. Okay, nitrous acid is unstable acid. It is prepared by the sodium nitride and HCl. Okay. Now third method. Nitrogen gas is also formed by the heating of ammonium nitride. What is the formula of ammonium nitride? NH4NO2. When it is going to be heated, it gives N2 and here 4 hydrogen here, so 2 molecule of water. When ammonium nitride is going to be heated, it gives nitrogen gas. Now next method. Nitrogen gas is also formed by the heating of ammonium dichromate. Ammonium dichromate is NH4 whole twice Cr2O7. When it is going to be heated, it gives N2 plus Cr2O3 plus 4 2 ja 8. 8 hydrogen here, so 4 molecule of water. This is another method for the preparation of N2. When ammonium dichromate is heated, it gives nitrogen gas. Okay. Now move to next method. When copper is treated with nitric acid. Nitric acid means HNO3. Remember, nitric acid is HNO3. It is stable in nature, and nitrous acid is HNO2. It is unstable in nature and not found in lab.
it is prepared by the combination of sodium nitrite and HCl. Okay. So here copper is treated with nitric acid and after heating it gives N2. One N here and it gives N2, so we take 2 molecule of HNO3 and H2, 2H, so H2O. There are total 6 oxygen here, 1 is removed, so 5 remaining oxygen is with Cu. So 5 oxygen with CuO, so we take 5 copper here. So this is the another method for the preparation of N2 when copper is treated with nitric acid. After heating it gives nitrogen gas and the CuO, 5 molecule of copper oxide and water. So these all are the method of preparation of N2. Now move to chemical properties. Okay. Chemical properties. Number 1, reaction with oxygen. When nitrogen reacts with oxygen, it gives NO. It is unstable in nature, so it further reacts with oxygen to give nitrogen dioxide. Balance. For balancing we take here 2 NO. Okay. Combination with O2. When N2 reacts with O2, it gives unstable NO. And it is further react with oxygen because it is unstable to give stable nitrogen dioxide. Now, second chemical property is reaction with H2. When N2 react with H2, it gives 2 molecule of ammonia. This is reversible in nature. Okay. Now move to next chemical property, that is reaction with alumina. Reaction with alumina is Al2O3. When alumina, that is Al2O3, it is alumina. When Al2O3 reacts with nitrogen in the presence of carbon, carbon means coal. In the presence of carbon, it gives aluminium nitride. Aluminium nitride is Aln, and aluminium nitride and carbon monoxide. Here 3 oxygen is present, so we take 3 carbon here, 3 molecule of Cu. So this is all about the chemical properties. Today we finished the dinitrogen method of preparation as well as the chemical property. In next video I will start method of preparation of nitric acid, that is HNO3. Okay, thank you. Good morning students. Students, in this video lecture we would solve some numerical problem of the topic structure of atom. So let's start with our today's first numerical problem. And students, if you are facing any problem during this particular chapter which is going on, you can WhatsApp me on this number, and I would try to solve your problem as soon as possible. So just WhatsApp me your problem on my WhatsApp number. So let's start with our today's first numerical problem. The first numerical problem is the energy of the hydrogen atom. The energy of the hydrogen atom in its ground state is minus 13.6 electron volt. The atom is given an energy of an energy of 10.2 electron volt, in which energy state will it reach, in which
energy state in which energy state it will reach, in which energy state it will reach, and what will be the wavelength, what will be the wavelength of the absorbed photon, what will be the wavelength of the absorbed photon. Okay, so this is our numerical problem. The energy of the hydrogen atom in its ground state, means normal state, is minus 13.6 electron volt. So this value is given to you, but you have actually known this value also, because I told you I had derived the formula energy of the electron in orbital number n for the hydrogen and hydrogen like ions is what it is, minus z square rhc upon n square. So this formula is for hydrogen and hydrogen like ions. For hydrogen z equal to 1, and we know that the value of rc is 13.6, so it would be minus 13.6 upon n square. This formula is for hydrogen and this is for general formula hydrogen and hydrogen like ions. Now for first orbital and normal state hydrogen, it is in first state, so this would become 13.6 electron volt. This value is actually electron volt, so minus 13.6 electron volt. But this value is also given to you, so no need to solve this. The atom is given an energy of 10.2 electron volt. एटम को इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा क्या करी जा रही है, प्रोवाइड करी जा रही है. तो एटम को ये एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, इससे एटम आपका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को. तो उसकी नेक्स्ट एनर्जी क्या होगा, सो एनर्जी ऑफ द, अब ये किस एनर्जी स्टेट की एनर्जी होगी, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड दैट एनर्जी लेवल. देखिए यहाँ पर इन विच एनर्जी स्टेट यू हैव टू फाइंड वेदर इट इज सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, बिकॉज इट इज इन फर्स्ट एनर्जी स्टेट इन नॉर्मल state, in ground state it is in minus 13.6 electron volt. This is the first n equal to 1. So you have to find after absorbing this energy atom would reach in which energy state. Suppose energy of that state is represented by En. ठीक है, En क्या आपका हो जाएगा, आपकी ये जो लेवल था n equal to 1, यहाँ पर एनर्जी थी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस, अब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, 10.2. तो इसका मतलब इसमें आप 10.2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो इसमें आप जैसे 10.2 ऐड करेंगे 13.6, ये एब्जॉर्ब करेंगे 10.2, तो ये वैल्यू आपके सॉल्व होकर कितनी आ गई, ये आपकी आ गई माइनस का, ये आपका आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आ गई, ये किस एनर्जी लेवल में क्या हो गया, पहुंच गया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांजिशन, ठीक है, किस एनर्जी लेवल पे पहुंच गया. तो इसको लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. आपको पता है En का फॉर्मूला, आपको पुट करिए, En का फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल टू आपका होता है माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर, इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. En की वैल्यू आपको किस, ये पता है, अब इसके लिए n निकालना है, तो ये वैल्यू आपको करिए माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर आपको क्या है n स्क्वायर, माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस, ईवी कैंसिल, n स्क्वायर बन जाएगा, तो n स्क्वायर इक्वल टू आपका रहेगा 13.6 अपॉन 3.4. इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाइए, ये आपका 4 टाइम्स बढ़ेगा, n स्क्वायर रूट लगाइए, n की वैल्यू प्लस माइनस 2, ये वैल्यू आपकी n इक्वल टू क्या है, निगेटिव नंबर्स नहीं है यहाँ पे, बेबस की बात हो रही है, तो निगेटिव नंबर्स आर नॉट वैल्यू फॉर दिस आंसर. सो हियर n इक्वल टू 2 वुड बी द आंसर. सो ये आपका किस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, n इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट में आपका ट्रांजिशन पॉसिबल है. तो आपका आंसर है इन विच एनर्जी स्टेट इट विल रीच इन n इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल. नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फोटोन. इसकी वेवलेंथ निकालनी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसको कैसे करेंगे,
तो जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, देखिए ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो इसके इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है एब्जॉर्ब फोटोन, यानी दिस एनर्जी इज कैरीड बाय द फोटोन। सो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल टू क्या होता है आपका hν, ठीक है, hν। और E की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये आपका वेवलेंथ निकालना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका होता है hc/λ, बट अगर ये आपको EV में दिया हो तो hc/λ के लिए आप ये लगाते हैं 1.2375/λ, बट लैम्डा कहाँ पर होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ये पूरा आंसर EV में आता है और ये वैल्यू EV में गिवन थी, दैट्स व्हाई यू वुड अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ से लैम्डा आपका क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा आपका आएगा 12375 डिवाइडेड बाय 10.2। इसको आप सॉल्व कर देंगे, इसको पॉइंट हटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 इंक्रीज हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, 102 से डिवाइड करना है 123,750, तो ये आपका फाइनली 1 टाइम्स गया 102, ये आपका आ गया 1, ये आपका 2, ये आपका 7, 2 से कर दीजिए, 2 1 2 0, 2 में यहाँ पे 4 हो गया, ये आपका आ गया 13, यहाँ पर आ गया 13, ये आपका 5 कैरी, यहाँ पर 5 नोट कर लीजिए, ये आपका 1 टाइम्स जाएगा 102, ये आपका 3 आ गया, ये आपका आ गया 3, ठीक है। इसके बाद 0 और नोट कर लीजिए, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका जाएगा 3 0 3 2 6 0 3, ठीक है। तो 1213 अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1213 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। So student, this is our second numerical problem. The first two excitation potentials of an atom are 6.8 volt and 11.2 volt. Calculate the wavelengths of the possible lines emission के लिए और n absorption के लिए। So आपको ये क्वेश्चंस में एक्साइटेशन पोटेंशियल दे रखा फर्स्ट टू, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, देखिए पहली स्टेट आपकी क्या है, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, सेकेंड दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, this is not the excited state, this is normal state, ground state, this is the first excited state, n equal to 2, next is n equal to 3, next excited state and so on, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था फर्स्ट टू एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए अगर आपका यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट से सेकेंड, तो दिस इज एक्साइटेशन, तो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट ट्रांजिशन एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांजिशन, ठीक है। नॉर्मल स्टेट से फर्स्ट, नॉर्मल स्टेट से आपका सेकेंड। तो यहाँ पर ये आपको पोटेंशियल दे रखे हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल से आप एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी एनर्जी क्या हुई और उसको कितनी एनर्जी लग रही है, तो ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है सिंपली कि आपका क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है, Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, ठीक है। और अगर हम चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो हम EV लिख देते हैं, ये W। अब W वर्क है एनालॉगस टू एनर्जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल है, ये जो आप पोटेंशियल देख रहे हैं W की हम लिख सकते हैं एनर्जी E इक्वल टू स्मॉल, ये चार्ज है, कंफ्यूज मत होइए, एनर्जी है EV, E और पोटेंशियल की वैल्यू क्या फर्स्ट हो जाएगा 6.8 इंटू 6.8, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी यानी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपकी हो जाएगी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E2 जो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है, यहाँ से निकालना पोटेंशियल तो एनर्जी नहीं, बस E से मल्टीप्लाई 11.2 EV, दिस इज द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब क्या है, ये है आपका E1, ये है आपका E2 और ये है आपका E3, ठीक है। E1 क्या है, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी है, फर्स्ट सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी है, और ये आपकी थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी है। अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इनको E1 मान दिया तब हो जाएगा आपको इसी वन से, इसको आप डेल्टा E1 और ये आपका डेल्टा E2, ठीक है। तो डेल्टा E1 डेल्टा E2 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, पहला एक्साइटेशन एनर्जी E2 माइनस E1, ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी का डिफरेंस है, ये है आपका डेल्टा E1 पहला, ठीक है।
ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन फॉर द एटम टू बी एक्साइटेड। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉन को, एक्साइट की जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो एक्साइट कर सके एटम को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा यही वो एनर्जी होगी जिसको हम एटम को प्रोवाइड करके उसको एक्साइट कर सकते हैं। तो ये आपका डेल्टा E1 आपको गिवन है। सेकेंड आपको गिवन है E3 माइनस E1। तो डेल्टा जो E2 है जो हमने लिखा है, दिस इज E3 माइनस E1। अब ये वैल्यू आपको मैंने 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बात समझ में आई। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन के पॉसिबल वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन के केस में वेवलेंथ क्या है, देखिए ये आपका एटम मान लीजिए नॉर्मल स्टेट में है। अब इसको अगर एक्साइट होना है तो एक्सटर्नली इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको पता फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी आप कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करें, लाइट इंसिडेंट कराई, इतनी एनर्जी लेकर लाइट आ रही है, तो वो लाइट की वेवलेंथ क्या है जिसको इसने एब्जॉर्ब किया फोटोन को, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्साइट होकर यहाँ पर पहुँच गया। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर फोटॉन्स आए, उन्होंने एनर्जी को फोटॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ट्रांजिशन हो गया आपका यहाँ पर। तो ये फोटॉन्स कितनी एनर्जी लेकर आ रहे हैं, 6.8 एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए, तो यानी कि ये आपको जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वेवलेंथ निकालनी है एब्जॉर्प्शन के केस में। रेडिएशन का केस क्या बनेगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए रहता है, वापस आ गया, एनर्जी को फिर से उसने क्या कर दिया, रेडिएट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सिंपली यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, इसकी वेवलेंथ निकाल लीजिए, वापस यहाँ पर आ गया इसकी वेवलेंथ। ठीक, तो यानी कि देखिए एक चीज़ और है, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन दोनों की है जो आपकी वेवलेंथ आएंगी वो यहाँ पर क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्योंकि ये जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, देखिए एब्जॉर्प्शन में भी सेम एनर्जी, रेडिएशन में भी सेम, तो यानी कि ये दोनों तो सेम वैल्यू आएंगी, और उसके बाद ऐसे ही है और ये वैल्यू भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करिए, दोनों टाइम सॉल्व करिए। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो एक आपका ट्रांजिशन हो सकता है कि आपका 3rd से 2 पर आ जाए और एनर्जी को क्या करते हैं, रेडिएट कर। ठीक है, 3rd से 2 पर आ जाए और एनर्जी को क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसके लिए आपको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए हमको E3 माइनस E1 पता है, E2 माइनस E1 पता है, ये डिफरेंस पता है और ये पूरा पता है। तो इस पूरी वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो ये एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। यानी अगर हम 11.2 में से 6.8 को माइनस कर लेते हैं तो ये आपका आएगा 4.4, यानी ये आपका जो आ जाएगा 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है रेडिएशन का, बट एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मतलब मोस्टली जो आपके एलिमेंट है, जो आपके एटम्स हैं, वो आपके नॉर्मल स्टेट में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, दैट्स व्हाई दिस एब्जॉर्प्शन लेवल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ पर होगा, बट ये जो आपका है ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल वेवलेंथ आएंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की तो 1 and 2 ओनली 2 आर पॉसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें रेडिएशन की, फर्स्ट रेडिएशन फर्स्ट वन, सेकेंड वन है, थर्ड वन। तो रेडिएशन की 3 वेवलेंथ होंगी, 3 लाइन्स होंगी और एब्जॉर्प्शन की आपकी 2 लाइन्स होंगी। एंड इसमें भी आप देख रहे हैं ये दोनों वेवलेंथ सेम आएंगी और ये दोनों सेम आएंगी, ये डिफरेंट है। तो निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपको डिफरेंस पता है एनर्जी का कितना था, 6.8, और ये किसके ऊपर हो जाएगा, 6.8 इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। तो इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा इक्वल टू आपका 12375 अपॉन 6.8। इसको आप सॉल्व करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा का। तो ये आपका लैम्डा आ गया। ठीक है, लैम्डा इसको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, लैम्डा 1 मान लीजिए कर देते हैं। उसके बाद सेकंड आपका लैम्डा 2 जो होगा वो हो जाएगा सिमिलरली 12375 अपॉन, इसके लिए निकालिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एनर्जी आपकी 11.2 है, तो डिवाइडेड बाय 11.2, तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में सेकंड वैल्यू आएगी, ये भी आपकी एंगस्ट्रॉम में है। और जो थर्ड वन है, यानी इसका जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका आ जाएगा लैम्डा 3, ये आपका आएगा 12375 अपॉन ये 4.4 वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से सबसे ग्रेटर वैल्यू ये है, तो इसका आंसर सबसे स्मॉलर आएगा, और ये आंसर सबसे स्मॉलर आपका इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आ रहा है 1105। ये आपका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1105 एंगस्ट्रॉम।
और इसका 6.8 का जो है ये जो मिडिल वैल्यू आप देख रहे हैं 6.8, इसका आंसर जो आपका आ रहा है ये आपका आया है 1820 इसको सॉल्व करिएगा 1820, और ये जो आपका है सबसे स्मॉलर है तो सबसे ग्रेटर आंसर आएगा, ये आपका आ रहा है 2812 स्केल, क्योंकि स्मॉलर है तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो 2812 आंसर इसका आ रहा है। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो और न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करिए चैप्टर के, जो भी ना है हमसे पूछ लीजिए, व्हाट्सएप करिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।